हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल स्टूडेंट स्टडी चैनल। सो लीगल अपडेट के सीरीज में एक अपडेट्स ये है रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 जो हुआ था दिसंबर 2024 में। उसके रिजल्ट आने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वेर फाइल्ड बाय ए petitioner in high court, but unfortunately that PIL was rejected by ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। लेकिन उसमें जो कैंडिडेट है वॉज सीकिंग टू रिडक्शन इन पासिंग मार्क्स फॉलोइंग द डिलीशन ऑफ क्वेश्चन। आपको पता होगा 7 क्वेश्चन जो है 100 आउट ऑफ 100 7 क्वेश्चन वेर रिजेक्टेड। तो जो 45% की क्राइटेरिया है जनरल ओबीसी के लिए 45%, बाकी कैटेगरी के लिए 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, देन यू विल गेट द पासिंग रिजल्ट, नहीं तो फेयर। ठीक है, तो पिटिशनर का आर्गूमेंट ये है, मैं इसमें पढ़ के भी सुनाऊंगा, यहाँ पर आप पढ़ेंगे। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड प्रेस दी बेल आइकन। बट देखिए पीआई रिजेक्ट हो गया है, लेकिन जो आर्गूमेंट है उस पर हम थोड़ी सी कॉल कर लें ताकि हमको फेयर आइडिया हो जाए। ठीक है, द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे यानी 24 जो रिसेंटली जो है डिसमिस्ड ए PIL प्री चैलेंजिंग द रिजल्ट ऑफ 2025 ऑल इंडिया बार एंड सीकिंग, यहाँ पे जो है डायरेक्शन सीख किया गया है फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सीकिंग ए डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, seeking a direction to Bar Council of India to lower the minimum passing marks in proportion to number of valid questions and to republish the result। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन मांगा गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि 7 क्वेश्चन जो स्क्रैप कर दिया गया तो 93 आउट ऑफ 93 जो क्वेश्चन है उसमें से भी 45% यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। लेकिन जो प्रोपोर्शन देखा जाए कि अगर 7 क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उसी तरह से यहाँ पे पासिंग मार्क्स को भी कम किया जाए। हालांकि पासिंग मार्क्स देखेंगे तो 45% का देखेंगे, 93 का 42 अराउंड हुआ। ठीक है, 42 माना गया सेक्शन वाइज देखें, ठीक है, या फिर 41 पॉइंट समथिंग। लेकिन पिटिशनर का कहना यह था कि जब आप क्वेश्चन 7 डिलीट कर रहे हो तो पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज है उसको भी घटाओ, यानी 45% है उसी के रेशियो में उसको भी घटाकर आप पासिंग मार्क्स काउंट करो, नहीं कि 45%। तो देखिए आगे सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या डायरेक्शन सीख किया गया फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम समझते हैं। Seeking a direction to the Bar Council of India to lower the minimum passing marks in proportion to the number of valid questions and to republish the result। The petition was filed by a candidate who appeared the examination, All India Bar Examination, and was declared as not qualified। Unfortunately जो है वो qualified नहीं हो पाए। ठीक है, she moved the PIL seeking the result of the All India Bar Exam be declared unjust, arbitrary and discriminatory। However, the division bench of acting Chief Justice Honorable Chief Justice Sanju Sachdeva and Honorable Justice Vinay Rao dismissed the petition, noting even if we were to accept the argument of the petitioner is alleged to have correctly answered only 39 questions, whereas 45% of 93 is 42 questions, 42 marks. Petitioner on her own showing has not obtained 45% of the valid questions declared by the Bar Council. Furthermore, we note that petitioner has participated in the examination and has not qualified the same. Accordingly, a public interest litigation at behest of the petitioner is not be mentionable. The petitioner, represented by Advocate Vishnu Prasad, argued that out of 100 original questions, the All India Bar Exam, the BCI had deleted 7 questions following objections raised by the candidates। हालांकि गलती था तभी तो रेज किया गया, तो 7 क्वेश्चन डिलीट हो गया। ठीक है, therefore the final result was based on 93 questions, he said। Prasad argued that since the number of the questions were reduced, the minimum passing marks should be also reduced। ये argument था to the from the petitioner side। The court noted that as per the Bar Council of India notification, the minimum qualifying percentage for the All India Bar Exam was 45%। Applying this percentage to the 93 valid question means that a candidate had to obtain at least 41.85 rounded up to 42 questions or marks to pass। Prasad argued that the marks are never indicated by the Bar Council and petitioner had made a calculation and as per her calculation she had correctly answered 39। तो सही बात है, हमें रिजल्ट में पास या फेल लिखा जाता है। ठीक है, तो या विथहेल्ड भी लिखा जाता है अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन करते समय आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो पास या तो फेल, तो ये तो सही बात है। However, the High Court noted that even if this claim was accepted, the score of the candidate still fell short of required 45% of the question। Finding no merit in PIL, the High Court dismissed the same।
अब केस का साइटेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल फुटनोट स्टडी से आपको ऑर्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन सीख किया है हाई कोर्ट ने फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस पर क्या क्लैरिफिकेशन आता है फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो फर्दर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। आपका इस PIL पे क्या ओपिनियन है, आपके इस ऑब्जर्वेशन, इस जजमेंट पे ऑब्जर्वेशन पे क्या ओपिनियन है, तो आप जरूर बताएं, उसको कमेंट करके आप अपने ओपिनियन को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।